रजीम बिस्मिल्लाह بسم रहमान। اللہ۔ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं आपसे शैतान मरदूद की जो दिलों में वसवसे डालते हैं। देखिए, कुलौज़ु बिरब्बिन फलक, मैं अरबी तो आपको पता है मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ उर्दू पढ़ती हूँ, तो उसी से मुझे पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। ये सुबह का मालिक कौन है? ठीक है, जिसने हमें जगाया सुबह की, जिसने हमारी जिंदगी की सुबह की हमें जगाया। جی सुबह का شروعات کی۔ मतलब होता है जिसने, हाँ, जिसने हमें हर चीज दिखाई, गलत सही जो कुछ भी था हर चीज के अंदर हमें दिखाया कि सुबह हुई ना, हमारी जिंदगी की सुबह हुई। तो जब आंख खुलती है इंसान की तो उसको पता चलता है कि उसने क्या किया। ठीक है, उस सुबह के मालिक जिसने हमारी जिंदगी की सुबह की, जिसने हमें बताया। तो हम कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ। हम अपने मालिक की, वो मालिक जो जिसने हमारी जिंदगी की सुबह की, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें शऊर दिया, तो उसकी पनाह में जाना है हमें। ठीक है, उसकी पनाह के अंदर आना है हमें, हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की। देखो, हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा, लोगों ने जो चीज, अल्लाह ने बुराई नहीं पैदा की। देखो, जो इंसानों के, देखो आप देखो कि अकीदे वाले लोग हैं, बड़े बड़े अकीदे वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने बुराई और अच्छाई दोनों चीजें पैदा की गई ताकि उनसे हम लोग सीख सकें। हमारी सुबह हुई, देखो मैं जैसे अपनी बताती हूँ सब लोगों को कि सलाद किस तरह से होती है। तो सलाद की सुबह जो होती है, जो हमारी शुरुआत होती है, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। पनाह मांगता हूँ। और ये लोगों ने, जो इंसान है दुनिया के, क्या वो उन लोगों ने उस चीज को महसूस किया? उन्होंने क्या किया, ये चीज की कि हमने جو कैसे بدل इस کے बुराई پیش میں سے, کیا۔ نہیں ہاں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ تو برائیاں تو تھی، دیکھو برائی اور اچھائی دونوں چیزیں تھی وہاں پہ موجود تھی نا، اچھائی بھی موجود تھی، برائی بھی موجود تھی۔ دونوں کے بیچ میں سے سیدھا راستہ جو تھا، جو صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے صبح دی، ہمیں جگایا، ہمیں اٹھایا، جو ہم سوئے ہوئے تھے اچھائی اور برائی کے بیچ میں سے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس کے بیچ میں سے اللہ نے جب ہمیں نکالا ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ اور پیدا کس نے کی؟ آپ دیکھو ہمارے بڑے بڑے اکابرین تھے، پوری زندگی وہ یہ سکھاتے آئے ہم لوگوں کو، ہر وہ چیز سکھاتے آئے جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ ہر اس چیز کو غلط سمجھتے رہے کہ نہیں غلط، یہ اس کو غلط نہ، اس کو نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، برائیوں سے ہمیں روکتے رہے۔ لیکن جب تک انسان برائی کے اندر نہیں جائے گا اور اچھائی کے اندر نہیں جائے گا تو وہ فیل نہیں کر سکے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ اچھی اور بری کے بیچ میں فرق کرنا نہیں سیکھے گا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز صحیح ہے ہمارے لیے اور کیا چیز غلط ہے، اور کتنی اچھی ہے اور کتنی بری ہے ہمارے لیے، وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ وہ صرف برائی جو تھی نا وہ اس لیے پیدا کی، وہ اس لیے کی گئی تاکہ ہم عقل لیں، ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے وہ برائی ضروری تھی ہماری زندگی میں غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آگے ہے، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ شب تاریک کی برائی سے، رات میں دیکھو، شب تاریک کی برائی، جو برائیاں رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں، جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ایک منٹ، جب شب تاریک کی برائی سے، اب دیکھو شب تاریک کی برائی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں اندھیرے میں رکھتی ہے۔ کوئی ایسی برائیاں، دنیا کی ایسی برائیاں جو ہمیں اندھیرے میں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں آنکھ نہیں کھولنے دیتی، وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتی، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کے بارے میں۔ جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب لوگوں کے اوپر تو اندھیرا چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو سب لوگوں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے اس چیز کا کہ برائیوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر۔ لیکن ہم لوگ، اگر ہم اس جو صبح ہماری صبح ہوئی ہے، زندگی کی جو صبح، یہ پہلی والی جو تھی نا کہ صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، کہ یہاں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور ہمیں اس اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائیوں سے۔ اب دیکھو، گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائیوں کا مطلب یہ ہوا کہ جب آواز، اس کا عربی کیا ہے؟ ذرا عربی واضح کرو۔
वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। मैं इसका ना मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ, मुझे नहीं उसका पता क्या है, उसका अरबी मुझे नहीं पता, ऐसे ही होगा या वैसे। मैं जो आपको बताई वो समझने की कोशिश करो कि गंडों पर फूंकने वालों की बुराई से का मतलब ये है कि जब इंसान, जितने भी लोगों के सामने हम जाते हैं, ठीक है, जब वो आवाज़ें, जब मुंह से फूंक क्या होती है, जब बात करते हैं ना तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, फूंक निकलती है बाहर, वो अल्फाज के ज़रिए हम लोगों को पता चलती है कि ये क्या बात कर रहा है, दूसरा इंसान बात क्या कर रहा है, ठीक है। वो जो हमारे ऊपर उन्होंने झूठ फैला के रखा होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं, उन्होंने जो हमें झूठ फैलाया होता है इर्द गिर्द के लोगों का, ये उनकी बुराइयों से और गंडों पर फूंकने वालों की बुराइयों से, जो फूंक बातें मुंह से निकालते हैं ना तो फूंक निकलती है। आपने कभी नोट किया, हवा बाहर निकलती है हमारे मुंह से, जो अल्फाज होते हैं, अल्फाजों का जादू करके, यानी ऐसे अल्फाज हमें दिए जाते हैं, वो लोग हमें ऐसे अल्फाज देते हैं कि हमें सच लगने लगते हैं, जब क्योंकि हम लोग अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उस वक्त, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता, हम उनकी बातों के ऊपर यकीन करते रहते हैं जो बताई जाती हैं। लेकिन जब सुबह के मालिक की पनाह मांगने आ जाते हैं, जब पनाह मांगते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमें पनाह देता है, जब हमारी आंखों, हमें रोशनी देता है, जब हमारी आंखें खोल देता है। सुबह के मालिक का मतलब है जब हमारी आंखें खोल देता है, हमें गलत और सही का फैसला करने का समझ आ जाती है, ये उसके बारे में बात है। और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे, अस्तगफिर अस्तगफिर अस्तगफिर। देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैं अपने आप को यहाँ पे इसलिए लूँगी, हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान के से वो नहीं करना चाहिए कि हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर, हमारे अंदर कभी भी जेलसी नहीं आनी चाहिए कि यार इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, इसके पास ऐसा है, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ दूसरे से और दूसरा मेरे से कमतर है। दूसरे को ना कभी भी अपने से कमतर नहीं जानना चाहिए। ये इल्म जो है ना, ये ऐसा इल्म है जो अल्लाह ताला जिसको मर्जी चाहे दे दे। ये जेलसी होती है, कई लोग ना उनके पास जब जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है उनके पास आ जाती है ना, तो वो जेलस होने लग जाते हैं कि ये क्या, इसके पास भी वो चीज़ आ गई जो मेरे पास है। तकलीफ़ होने लग जाती है उन लोगों को। अगर मुझे तकलीफ़ होगी ना इस वक्त, देखो मेरे पास ये इल्म है, ये मेरे रब की मेहरबानी है। अगर मेरा रब मेरे ऊपर मेहरबानी ना करता इस चीज़ की, तो मैं तो कभी भी इस चीज़ को समझ ही ना पाती कि क्या चीज़ है। हमें कभी भी किसी इंसान से जेलस नहीं होना, ये चीज़ें हमें पहले बताई गई थी, याद करो, कुरान के अंदर ही हमें बताई गई कि हसद नहीं करना, जेलसी नहीं करनी किसी से भी। किसी के पास क्या है क्या नहीं है वो उसके लिए, हमारे पास क्या है ये हमारे लिए। हमें इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को देना है। मैं तो अपना इल्म सबको देती हूँ क्योंकि मेरे रब ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ, उसको बयान करूँ, तो मैंने बयान कर देती हूँ इस तरह से। ना ही मेरे अंदर कोई जेलसी है किसी के लिए, ना ही मेरे अंदर कुछ ऐसे, सबके साथ इकट्ठा लेके चलना चाहती हूँ। और हम लोगों को, जितने लोग भी यहाँ हैं ना, सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कि कभी भी किसी दूसरे से जेलस ना हो कि उसके पास क्या है, बेहतर है, ये है वो है। हाँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करें, जैसे मेरे साथ मैं अभी कोशिश करी थी कि वो भाई लोग मुझे ले लेते ऊपर तो मैं बात कर लेती, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद वो लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि वो सब मिल के बात कर रहे थे और मैं थोड़ा सा उनके ऊपर बोझ थी या बर्डन थी। तो इस वजह से मैंने बोला मैं अपनी ब्रॉड ओपन करके तो मैं इसकी ट्रांसलेट कर लेती हूँ, इस आयत को, सूरत को ट्रांसलेट कर लेती हूँ। सूरह फलक की हो गई है। तो हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे, ये बुराई होती है। हसद जो है ना, जेलसी जो है, वो एक बहुत बड़ी बुराई है। और ऊपर बता दिया गया था हर चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की। लोगों ने ये चीज़ें खुद ही पैदा कर ली अपने अंदर। जेलसी आ गई ना कि कहीं इसको इल्म ना मिल जाए, कहीं इसको ज़्यादा चीज़ ना मिल जाए। तो ये बुराई थी, एक किस्म की बुराई थी जो इंसान के अंदर आ गई। और उस इंसान ने सोचा कि यार मेरे पास जो इल्म है, कहीं इसके पास भी आ गया, इसको भी पता चल गया, या पैसा जो है मेरे पास, वो पैसा इसके पास भी आ गया, इसके पास भी मिल गया, तो फिर क्या होगा, ये तो मेरे बराबर ही हो जाएगा। तो लोग इस तरह से हसद करते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने बताया कि ये बुराई है
اور جس نے حسد کیا، جس نے یہ سب کچھ سوچا، اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کر دیا، ہمیں الگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے دیا، مجھے شعور دے دیا کہ تمہاری صبح ہو گئی ہے، تمہیں میں نے جگا دیا، تمہیں میں نے بتا دیا، ہر طرح کا علم دے دیا تمہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا اس کا مطلب پہلی والی آیت کا۔ سورہ فلق ہے یہ۔